નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. 450ની વધુ દિવ્યાંગજનોએ ભાગ લીધો. 327 લાભાર્થીઓ માટે 3D પ્રિન્ટેડ નારાયણ મોડ્યુલર કૃત્રિમ અંગ માટે માપ લેવામાં આવ્યા. નારાયણ સેવા સંસ્થાન તથા તેના CSR ભાગીદાર ઇંગલસોલેન્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે રવિવારે નવરંગપુરા સ્થિત ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિશાળ નિઃશુલ્ક દિવ્યાંગ સર્જરી તપાસ, પસંદગી તેમજ જાપાની જર્મન ટેકનોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવેલા 3D પ્રિન્ટેડ નારાયણ મોડ્યુલર આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ મેજરમેન્ટ કેમ્પ, કૃત્રિમ અંગ માપણી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં 450ની વધુ દિવ્યાંગજનોએ ભાગ લીધો હતો. નિષ્ણાંત ડોક્ટરો તથા પીએનડો ટીમે 327 દિવ્યાંગજનો માટે નારાયણ મોડ્યુલર કૃત્રિમ અંગો, કૃત્રિમ હાથ અને પગ માટે જરૂરી માપ લીધા હતા. શિબિરનું ઉદ્ઘાટન સમાજસેવિકા રમીલાબેન ટી પટેલ, જોગેન્દ્ર પ્રતાપસિંહ, વલ્લભભાઈ દાનાણી, ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ, કિરીટભાઈ શાહ, પુષ્પાબેન રાઠોડ, આશુતોષભાઈ પંડિત, વિવેક પટેલ, શીતલ પટેલ અને જગદીશ છેજાની સહિતના મહાનુભાવોએ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કર્યું હતું. આ પ્રસંગે સમાજસેવિકા રમીલાબેન ટી પટેલે જણાવ્યું હતું કે દિવ્યાંગજનોની સેવા એ જ ઈશ્વરની સાચી સેવા છે. નારાયણ સેવા સંસ્થાન વર્ષોથી દિવ્યાંગજનોના સર્વાંગી વિકાસ અને આત્મનિર્ભરતા માટે સમર્પિત ભાવથી કાર્ય કરી રહ્યું છે. આવા સેવકીય કાર્યોને સમાજ તરફથી સતત સહયોગ મળતો રહેવો જોઈએ. સંસ્થાનના સંરક્ષક તથા મુંબઈ શાખાના પ્રમુખ મહેશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થાનની સેવા ભાવનાને જોઈ તેઓ ભાવવિભોર થઈ ગયા હતા. તેમણે દિવ્યાંગજનોને જીવનમાં ક્યારેય હાર ન માનવા અને આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થાન દિવ્યાંગજનોને શારીરિક, સામાજિક, આર્થિક અને બૌદ્ધિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટે અનુસરવા યોગ્ય કાર્ય કરી રહ્યું છે. મહાનુભાવોએ શિબિરની મુલાકાત લઈને દિવ્યાંગજનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો તેમજ ડોક્ટરો પાસેથી સારવાર અને પુનર્વસનની સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે માહિતી મેળવી હતી. જનસંપર્ક વિભાગના વડા ભગવાન પ્રસાદ ગૌડ, શિબિર પ્રભારી હરિપ્રસાદ લડ્ડા, સુરત પ્રભારી અચલસિંહ ભાટી તથા અમદાવાદ પ્રભારી કૈલાશ ચૌધરીએ મેવાડની પરંપરા અનુસાર મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગે સંસ્થાન દ્વારા આપવામાં આવતી નિઃશુલ્ક સેવાઓ જેવી કે દિવ્યાંગજનોની સર્જરી, કૃત્રિમ અંગોનું વિતરણ, દરરોજ 5000 જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન, આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોના બાળકો માટે નિઃશુલ્ક નારાયણ ચિલ્ડ્રન્સ એકેડમી, સ્વરોજગાર તાલીમ તેમજ સમૂહ લગ્ન જેવા સેવાકીય પહેલની માહિતી આપવામાં આવી હતી. સંસ્થાનના પ્રમુખ પ્રશાંત અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે શિબિરમાં 450ની વધુ દિવ્યાંગજનોની નોંધણી કરવામાં આવી હતી. નિષ્ણાંત ડોક્ટરો તથા પીએનડો ટીમે તમામની તપાસ કરીને 327 દિવ્યાંગજનો માટે નારાયણ મોડ્યુલર કૃત્રિમ અંગ માટે માપ લીધા હતા. સાથે જ દિવ્યાંગજનો માટે કેલિપરના માપ પણ લેવામાં આવ્યા હતા અને 33 દિવ્યાંગજનોને નિઃશુલ્ક સર્જરી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. મહેશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે આજે જેમના માપ લેવામાં આવ્યા છે તે દિવ્યાંગજનોને અંદાજે 2 થી 3 મહિના બાદ અમદાવાદમાં યોજાનારી શિબિરમાં જાપાની અને જર્મન ટેકનોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવેલા હળવા, ટકાઉ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા નારાયણ મોડ્યુલર કૃત્રિમ અંગો નિઃશુલ્ક પહેરાવવામાં આવશે. શિબિરમાં તમામ લાભાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનો માટે ભોજન, ચા અને અલ્પાહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આશરે 40 સભ્યોની ટીમે પોતાની સેવાઓ આપી હતી, જ્યારે સમગ્ર શિબિરનું સંકલન મહિમ જૈને કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 1985ની સમાજ સેવામાં સમર્પિત નારાયણ સેવા સંસ્થાનના સ્થાપક પદ્મશ્રી કૈલાશ માનવને તેમની વિશિષ્ટ સેવાભાવના બદલ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પદ્મશ્રી સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સંસ્થાનના પ્રમુખ પ્રશાંત અગ્રવાલને વર્ષ 2023માં દિવ્યાંગજન સશક્તિકરણના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય બદલ રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. સંસ્થાન અત્યાર સુધીમાં દેશ વિદેશમાં 40,200મી વધુ દિવ્યાંગજનોને નિઃશુલ્ક કૃત્રિમ અંગો પ્રદાન કરી ચૂક્યું છે તેમજ 4,54,081મી વધુ દિવ્યાંગજનોને નિઃશુલ્ક સર્જરી અને તબીબી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી ચૂક્યું છે. नमस्कार मित्रों, मैं महेश अग्रवाल मुंबई से सेवा के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और नारायण सेवा के संस्थापक हमारे बड़े भाई श्री कैलाश जी अग्रवाल को नज़दीक से मैंने उनके सेवा को अनुभव किया है. मनुष्य के हृदय में करुणा का अपार समुद्र लहराते हुए मैंने कैलाश जी के साथ अनुभव किया कि किस तरह से दिव्यांगों के जिनको कुदरत ने वंचित रखा है अपने हाथ पैरों से या उनमें विकृतियां पैदा हो गई, कैलाश जी उनकी सेवा करके उनका ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा कर करके उनको सर्वांग वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के इस महान कार्य में आज 40 सालों से लगातार जुटे हुए हैं. एक अकाउंट्स क्लर्क की जॉब करते हुए सरकारी और उन्होंने ये पुनीत कार्य शुरू किया और समाज ने उसको भरपूर सहयोग दिया. आज तक 4,52,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं और 40,000
लोगों के हाथ पैर कृत्रिम लगा चुके हैं। 40,000 लोगों का जीवन में उनके हाथ पैर लगने का जो अद्भुत परिवर्तन आया है, उसको आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप इस पुनीत महान यज्ञ के अंदर शामिल होइए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करिए, सेवा कीजिए, समय दीजिए और लोगों के जीवन को स्वावलंबी बनाने के अंदर अपनी छोटी सी आहुति प्रदान कीजिए। इससे बड़ा पुनीत कार्य और कोई नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में दूसरों के दुख से करुणा उपजती है, सहानुभूति और प्रेम उपजता है, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और इस बात को जन जन तक पहुंचाइए कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई भी दिव्यांग भाई बहन है तो उसको नारायण सेवा तक पहुंचाएं। इस पुनीत कार्य में सहयोग दीजिए कि दिव्यांग को सूचना मिले और नारायण सेवा के सेंटर पर पहुंचे और अपने जीवन को बदलने का पूरा लाभ लेवे। नारायण सेवा दृढ़ संकल्प है कि धरती पर एक भी दिव्यांग नहीं रहना चाहिए जो किसी दूसरे पर आश्रित हो। नारायण सेवा का एक ही संकल्प है कि सब अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी हों, किसी पर आश्रित नहीं हो। उसके अंदर समाज के सहयोग से यह सब संभव हो पा रहा है और मीडिया और प्रेस इस सूचना को जन जन तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज के शिविर में जो ये अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है, इसमें 500 से ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, पर मौसम की विकरालता विपरीतता की वजह से अभी तक 300 से ज्यादा दिव्यांग यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी आज का दिन पूरा बाकी है। अभी भी और लोगों के आने की संभावना है, क्योंकि बहुत बारिश होने से कई दिव्यांग भाई बहन पहुँचने में असमर्थता असुविधा महसूस कर रहे हैं। फिर भी हम जब तक एक भी दिव्यांग भाई बहन के आने की आशा रहेगी, हमारा ये शिविर चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयशा सिद्दीका। नहीं, अभी बारिश होती है ना तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। मैं ठीक कर दूंगी, अच्छा लगेगा और मैं खेल पाऊंगी दोस्त के साथ। ओके, आपके साथ यहाँ आज कौन आया है? इसको 2 साल से तकलीफ था, इसका ऑपरेशन हुआ था, इसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया था, इसकी वजह से मैं स्टील लगवाया था। तो जब से वो चल नहीं पाती है, मेरे को यहाँ के बारे में मालूम पड़ा तो मैं आया यहाँ कि अब यहाँ पे जूता बोलने लगाएंगे, तो उसकी वजह से बाद से ये चलेगी। खुद ब खुद फ्रैक्चर हो गया, इसका हड्डी कमजोर है। अभी बच्ची का खेलना, स्कूल जाना कैसे मैनेज करते हो आप परिवार से? स्कूल तो नहीं जा पाती क्योंकि इसको प्रॉब्लम है, और घर पे जो जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि खुद से पढ़े और इसकी मम्मी पढ़ाती है, ठीक है। बाकी क्या नाम है कि खेलने कूदने में भी इसको प्रॉब्लम है, बाहर तो जा नहीं पाती, घर में भाई बहन के साथ खेलती। इसीलिए तो मैं यहाँ लेकर के आया ताकि ये यहाँ से अच्छी हो करके खुद अपने पैरों पे चल पाए, किसी की मोहताज न रहे। मैं यही चाहता हूँ कि मोहताज न रहे किसी की। नमस्कार सर, मेरा नाम भगवान प्रसाद गौड़ है। मैं नारायण सेवा संस्थान का मीडिया और पीआर हेड हूँ। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी प्रांगण में एक भव्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सबको विदित हो कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान का एक NGO है जो पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगता और मानवता के लिए कार्य कर रहा है। आज इस शिविर के अंदर गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से और राजस्थान और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से यहाँ दिव्यांगजन आए हैं। ये ऐसे दिव्यांग हैं जो किसी दुर्घटना के अंदर हाथ और पैर खो चुके हैं। उन दिव्यांगों को नारायण आर्टिफिशियल लिम्ब, मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब जो 3D प्रिंटेड है, जर्मन और जापानी टेक्नोलॉजी के बने जो हाथ और पांव हमारे संस्थान द्वारा बनाए जाते हैं, उन सब के लिए इनका मेजरमेंट लिया जा रहा है। अभी करीब 11 बजे हैं तो करीब 300 पेशेंट हमारे यहाँ पे इस प्रांगण में आ चुके हैं और सबका मेजरमेंट हमारी टीम द्वारा लिया जाएगा। आने वाले 45 दिनों के अंदर इन सभी दिव्यांगों के उनके मेजरमेंट के अनुसार हाथ और पांव तैयार होकर आएंगे, उन सबका पुनः फिटमेंट किया जाएगा। जो भी दिव्यांगजन आ रहे हैं उन सभी दिव्यांगों के लिए अल्पाहार भोजन की व्यवस्था, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है और जो भी दिव्यांग बंधु आ रहे हैं उन सबका पूरी तरह से केयर किया जा रहा है। हमारी संस्थान की 35 सदस्यीय टीम है, हर व्यक्ति का भाईचारे के साथ उन सबका माप ले रही है और माप लेने के बाद में उनको संतुष्ट करके पुनः भेजा जा रहा है। और जो दिव्यांग 45 दिन बाद में आएंगे तो उस दिन बहुत ही एक ऐसा दिल को छूने वाला प्रोग्राम होगा कि जो दिव्यांग आएंगे उनके
माप के अनुसार पाँव फिट होगा। फिट होने के बाद में उनको किस तरह से के आर्टिफिशियल लिम्ब का रख रखाव करना है, उनको पहन के कैसे चलना है, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं उतरते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग पूरे दिन भर दी जाएगी। तो मैं आप सब के माध्यम से दिव्यांगजनों और समाज से प्रार्थना करूंगा कि मानवता के इस कार्य में दिव्यांगों की सेवा के लिए आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सर आज के प्रोग्राम के अंदर गुजरात के विभिन्न जिलों से यहाँ पे दिव्यांगजन आए हैं। इसके अंदर राजस्थान के भी कुछ रोगी जन आए हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी रोगी आए हैं और पूरे भारत भर की अगर बात करें तो संस्थान द्वारा 42,000 से ज्यादा दिव्यांगों को नारायण आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जा चुके हैं और करीब 4,52,000 लोगों की सर्जरी संस्थान द्वारा की गई है और सैकड़ों की संख्या में नारायण सेवा संस्थान द्वारा उनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए गए और हजारों के अंदर नारायण सेवा संस्थान ने गुजरात के दिव्यांगों को सर्जरी करके उनको सफल जीवन दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है। पर नारायण सेवा संस्थान की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3D प्रिंटेड जर्मन और जापानी टेक्नोलॉजी के हाथ और पांव वहाँ पे निर्मित किए जाते हैं। करीब 1800 हाथ और पांव हर महीना हमारे बनाने की कैपेसिटी है तो और हमारी वहाँ पे करीब 80-90 आदमी की टीम है वो इस कार्य को करती है और वहीं पे जाके इन सब के हाथ और पांव ये वापस निर्मित होंगे और उनके मेजरमेंट के अनुसार ही वापस लाके इनको फिटमेंट किए जाएंगे। तो दर्शक મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।